अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, आदिया ने अरु कौन थी? जवेरिया थी, हाँ, डॉक्टर जवेरिया थी। अच्छा, डॉक्टर जवेरिया। जी मैम। ओके। आप अब नेक्स्ट स्टेशन भी करेंगी, स्टेशन बी है अब सेम केस पे, ठीक है। और आपको अब मैम वो मैं अरूज ने नहीं करना था। आपने अरूज को बोला था। चलिए या अरूज मैं ही कर लेती। अरूज आ जाए, कोई बात, अरूज ने सुना है केस, जी कोई बात नहीं, ठीक वो है। आ जाए। दो दो हाँ कैंडिडेट्स जी। हो जाएंगे, इजी हो जाएगा। जी आप मुझे वॉइस मैसेज कीजिएगा, जवेरिया केस समरी ठीक है। मैनेजमेंट, ठीक है। जी आ जी जाए जी अरूज। मैम। ठीक ओके, यू हैव टेन है। मिनट्स ठीक हेलो। है। जी जी, आपके पास अभी मैं ना 7 मिनट्स आपको दूंगी, और 7 मिनट्स में मैं बोल दूंगी कि आपका टाइम अप हो गया है। तो ठीक है। आप जो है ना आप आगे बोलती रहिएगा, लेकिन मैं बीच में बोल दूंगी कि 7 मिनट्स। ओके मैडम। ठीक है। ओके, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। व्हाट आर द रिस्क फैक्टर इन योर केस? Risk factor in my patient as she is chronic hypertensive and previous to cesarean section, blood pressure is uncontrolled. She is having no alive issue, history of eclampsia. These are the risk. Obesity and anemia is a risk factor in my patient. वन मोर। नो लाइव इश्यूज, अनीमिया, पिछले बच्चे को क्लेम्शिया था, उसके अगले बच्चे को एक और चीज थी। IUGR. हाँ, तो आईयूजीआर पिछला प्रीवियस आईयूजीआर एक रिस्क फैक्टर है, ठीक है। ओके। ठीक है। ओके, हाउ विल यू मैनेज दिस पेशेंट? For the management of my patient, I need to investigate. In investigation, I need her blood group with rhesus factor. बी पॉजिटिव। Madam, will you tell? बी Okay. पॉजिटिव। And her full blood count with date for hemoglobin, platelet count, and total leukocyte count. Hemoglobin is 8 gram per deciliter. Total leukocyte count is 7,000. Platelet count is Mm, 170,000. okay. And her peripheral smear and red blood cell indices. Peripheral smear is shows hypochromic hypochromia, ठीक है। or all RBC indices are reduced. Okay. Her serum ferritin. Not done. Okay. And her random blood sugar level. What will you ask in obstetric case? Her fasting. Her हाँ, fasting blood sugar level. fasting is normal. Okay. Her hepatitis B surface antigen, 1 आवर पोस्ट anti-HCV पेरेंडियल antibody. भी पूछिए ना। गायनी के हाँ। केस में बेटे आपने पूछना है रैंडम ब्लड शुगर, और ऑप्स के केस के ठीक है। अंदर आपने पूछना है फास्टिंग दोनों ब्लड पूछने शुगर हैं। एंड 1 आवर पोस्ट पेरेंडियल। दिस इज व्हाट एसओजीपी ओके। सेज नाउ। ओके। वन ओके। आवर पोस्ट और पेरेंडियल इज नॉर्मल। ओके। हर हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, anti-HCV antibody and HIV antibodies. नेगेटिव। हर मिड स्ट्रीम कंप्लीट यूरिन एग्जामिनेशन फॉर पस प्रोटीन्स, एल्बुमिन, यूरिन नाइट्रेट. कंप्लीट शोज प्रोटीन यूरिया 1+, रेस्ट इज नॉर्मल। ओके. हर डेटिंग स्कैन टू डेटिंग सी द स्कैन। नंबर ऑफ fetuses, हम्म। gestation age and cardiac activity. ओके। सिंगल अलाइव प्रेगनेंसी of 9 weeks. No other scan available. Okay. And her liver function tests and renal function tests Not for done. urea creatinine. Not Okay. done. Her ECG fundoscopy or No, okay. no other tests are done. Okay. Only these Okay. are the Then tests. Proceed. Okay, then I proceed for the further management. I will counsel my patient, counsel the couple regarding her diagnosis that she is a very high risk pregnancy due to multiple risk factors, and it has the fetal-maternal risk involvement, including maternal risk include uncontrolled blood pressure and anemia, increased risk of high output cardiac failure, increased risk of admissions in the hospital, and for the baby, there is increased risk of intrauterine growth restriction, preterm delivery, and anomalies. And I will, as my Why patient is having the anomalies?
Which anomalies? नहीं Okay, मैडम, move on. एनोमलीज बीपी की वजह से तो नहीं होगी, आईयूजीआर का रिस्क होगा। Okay, move on. Then I will admit my patient as she is having raised blood pressure of 170, 110, and she is having headache. I will give IV antihypertensive for the control of her blood pressure, and I will send her serum ferritin as well. I will do anemia correction after controlling of her blood pressure, and after injectables, I will shift the anti-oral antihypertensives for the control of blood At what pressure, blood pressure and you will shift the patient to oral? What is the at target? 130, 135 and 85, blood pressure should be maintained on oral antihypertensives, and क्या then देंगी I will ओरल में? continue. ओरल में क्या देंगी? First line is labetalol. Labetalol, कैसे देंगी? कितने मिलीग्राम की गोली होती है? 5 मिलीग्राम की। माशाल्लाह, आज जाके सर्च करना नहीं, है। 5 नहीं, 100 मिलीग्राम की टेबलेट होती 100 है। मिलीग्राम की होती है, और हम्म। वो हम 6 टैबलेट मॉर्निंग और 6 इवनिंग अकॉर्डिंग टू ब्लड प्रेशर ओ एडजस्ट माय करते हैं डोज गॉड, को। इतनी ज्यादा गोलियां देंगी? मर जाएगी मरीज आपकी। 16 वीक्स पे फौत हो जाएगी। सिक्स ये तो बहुत ज्यादा डोज है। चले, इसकी डोज होती है अच्छा। 100 मिलीग्राम मैं बीटी। इनिशियली शी इज ऑलरेडी टेकिंग 100 मिलीग्राम बीटी, but now you will adjust that to the 100 milligram TDS. Once they on ओके। TDS, if blood pressure is not controlled on labetalol TDS dose, then you will add another agent, either सेकेंड Aldomet, महीने का, ठीक। okay, ठीक। or nifedipine, okay. ठीक। जी। वो ठीक। एडालेट रिटार्ड के नाम से टेबलेट आती है, वो 30 मिलीग्राम हम्म। की होती है, 20 की भी होती है, 10 की भी होती है, ठीक है। जो रिटार्ड जी। टेबलेट होती है दैट इज 30 मिलीग्राम। देन यू विल ऐड टेबलेट एडालेट रिटार्ड 30 मिलीग्राम इन द मॉर्निंग, ओके। एंड बी जी। केयरफुल फॉर द hypotension as nifedipine cause the hypertension, okay. जी। So जी, you आई विल टेल either माई you पेशेंट add अबाउट the द साइड Aldomet इफेक्ट। or you add the nifedipine। निफेडिपिन। और उनके निफेडिपिन आपको अकॉर्डिंग टू हर क्लिनिक। जेनरिक नेम आने चाहिए, ठीक है। जेनरिक नेम जी। आपको आने चाहिए। इट इज नॉट हाइड्रेलाजीन। हाइड्रेलाजीन की ओरल नहीं होती, हाइड्रेलाजीन सिर्फ इंजेक्टेबल होती है, ठीक है। कैल्शियम ठीक है। चैनल ब्लॉकर्स हम इतने नहीं देते। फर्स्ट लाइन में हम लेबिटालोल, निफेडिपिन और फिर एल्डोमेट, इन तीन को आपस में एडजस्ट करते हैं, ठीक है। निफेडिपिन इज अ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ठीक है। सो आपने ठीक उसमें है। देना, उनको आपको दूसरे नाम भी आने चाहिए, ठीक है। मैडम एल्टो है वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होता है। नहीं नहीं, वो अल्फा ब्लॉकर है। नहीं नहीं। वो मिथाइल डोपा है। हाँ, वो मिथाइल डोपा है, ठीक है। जी ठीक है। और ये जो कैल्शियम चैनल फेडिपिन इज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ठीक है। ठीक हो गया मैडम। हाँ, वो दोनों पे इफेक्ट कर, लेबिटालोल दोनों पे करता है, एल्डोमेट अल्फा पे करता है, और वो करते हैं। इनको एक नजर ना इन ड्रग्स को एक दफा लिख लीजिए। वो आपकी आप एक दफा इनको पढ़ेंगे, मैं आपको शेयर कर देती हूँ उनकी डोजेस वाला जो है चार्ट ना। बाकी आप अपनी लिख जी। लें। और इसके अंदर भी लिखी हुई है, शाजिया खटक के अंदर भी लिखी हुई है, ठीक है। जी। इनके जो ठीक है मैम। एसीओजी के वो प्रोटोकॉल्स है ना, फेडिपीन के, लेबिटालोल के, वो मैं भी आपसे शेयर कर देती हूँ, ठीक है। हाँ, जी। ठीक एसओजीपी है। बहुत ज्यादा लेबिटालोल को देती है, लेकिन आरसीओजीज वगैरह इतना, और प्रैक्टिकली भी इतना ज्यादा लेबिटालोल नहीं दिया जाता। आईवी दिया जा सकता है, आईवी तो इतनी डोज बन जाती है देते देते मैक्सिमम। और वो है अमेरिकन कॉलेज की गाइडलाइन, ठीक है। आरसीओजी में इतना ज्यादा नहीं है, ठीक है। जो हार्ट वाले हैं ना अमेरिकन, उन्होंने ये बनाई हुई है, ठीक है। अब मैं थोड़ी सी रिकॉर्डिंग स्टॉप करके, जी, हाँ जी। अच्छा, हाँ ये जी। मैंने अभी आपके साथ शेयर देन की थी लेबिटालोल का और वो उसका, ठीक है। मैंने आपका टाइमर स्टॉप कर दिया था। आप दोबारा से वहीं से शुरू करें कि आपने लेबिटालोल उसको बढ़ा दिए, टीडीएस पे कर दिए, जितनी भी डोज एडजस्टमेंट हो जाएगी। आगे चलें। ठीक है। आफ्टर कंट्रोलिंग ऑफ हर ब्लड प्रेशर, आई विल आल्सो डू अनीमिया करेक्शन आफ्टर सीरम फेरेटिन। आई विल गिव 4 infusions of 4 iron infusions, and after correction of anemia, I will discharge my patient with Your red patient flag is signs at and keep her 16 weeks. Why you are giving IV? 8 HP. HP, her HP is 8.
So don't you think it will be corrected with oral dose? जी, if compliance of patient is good, then I will give my patient oral हम्म। iron in the therapeutic dose बहुत and ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं आते? जी जी मैडम। नहीं, वो हाथिया का वो था। अच्छा, then I will discharge my patient with the red flag signs and keep my patient on follow-up. At 2 weekly interval at each visit, I will assess the patient about any complaint of headache and do her dipstick testing. And at 20 weeks anomaly scan, I will give my patient Loperin 150 milligram till delivery and follow up glucose scans at 3 to 4 weeks interval and baseline Doppler ultrasound for the baby. And at 36 weeks, I will reassess my patient at 36 weeks and decide the time of delivery. Her mode of delivery is by the abdominal route at 38 weeks of gestation, if no fetal-maternal compromise. And I will prepare my patient for the elective surgery after giving steroids for the fetal lung maturity. And this surgery would be done at a high, with having the high facilities. For the neonatal assessment as well, I will give advice regarding contraception to the patient as well during her delivery. Her blood pressure should be maintained and it should be controlled. And after delivery, baby evaluated by the pediatrician and patient enhanced recovery program should be followed for the patient and monitor blood pressure and taper the antihypertensive accordingly. I will shift the patient to the recovery and monitor her blood pressure as well and give my patient stockings and do venous thromboembolism assessment and give prophylaxis according to the need. And then I will discharge my patient after her control of blood pressure and keep my patient on follow up at 2 weeks and then 6 weeks and involvement of physician for the blood pressure record as well. Hello. जी जी, सुन रहे हैं। हो गए। For the blood pressure record as well, and then pre-pregnancy counseling, and I will discharge my patient with the contraceptive advice. जी। यू डिड इट इन 12 minutes। हम्म, ठीक है। जी। अच्छा, एक तो देखें आपने जो IUGR टोटली मिस कर दिया, यूट्राइन आर्टरी डॉपलर मिस कर दिया। 20 वीक्स पे जब आपने नॉर्मली कराना है, साथ ही आपने यूट्राइन आर्टरी डॉपलर देखना है फॉर नॉचिंग। ये हाई रिस्क पेशेंट है, पिछला बच्चा IUGR भी है, हम्म, क्रॉनिक हाइपरटेंशन हाँ भी जी। है, ठीक है। जी। फिर अभी आप मैक्सल्फेट की बात करना भूल गई, क्योंकि उसको 1+ प्रोटीन यूरिया आ रही है, फिर एवरी विजिट पे आपने उसका प्रोटीन यूरिया भी चेक नहीं किया, ठीक है। वो करा है डिपस्टिक पे हाँ, बोला। डिपस्टिक पे आपने कराया ना। हाँ जी। 1+ तो आ गया हुआ अच्छा। है, अब डिपस्टिक का तो रोल नहीं ना रह जाता। 1+ तो आ अच्छा। गया, अब एक दफा वो जब प्रेजेंट की है तो आ गया, अब आपको यूरिन कंप्लीट करवाना पड़ेगा फॉर प्रोटीन यूरिया। ठीक है। ठीक है, तो वो तो 1+ ऑलरेडी आ रहा है उसमें। और फिर इस पेशेंट के अंदर आपने वो प्रोटीन क्रेटिनिन रेशो भी करानी है। ACR नहीं अब हम करते, हम लोग वैसे प्रैक्टिकली जो कर रहे हैं वो प्रोटीन क्रेटिनिन रेशो रहते हैं। हाँ, अगर प्रोटीन क्रेटिनिन रेशो अवेलेबल ना हो तो आप एल्ब्यूमिन क्रेटिनिन रेशो ले सकते हैं, और उसकी कट ऑफ वैल्यू प्रोटीन की जो है वो 30 है और उसकी 8 है। ठीक है, ये अब तो 24 आवर वाला मैडम ये प्रोटीन 1+ भी करवा लेना है हमने या 2+ पे फिर हम कराएंगे करवाना है। 1+ वन पे? प्लस पे भी करवा लें एक दफा, वंस तो करवाना ही ठीक। करवाना है आपने। ठीक वन मैडम प्लस शायद वन ठीक। प्लस ऑन 2 occasions एंड +2 अगर एक दफा भी आ जाए तो आपने प्रोटीन क्रेटिनिन रेशो हाँ, करानी है। तो जब आप प्रोटीन यूरिया करवा ही नहीं रही हैं, आप डिपस्टिक पे देखी जा रही हम्म। हैं, तो फिर आप PCR तो क्यों करें? इसमें इस पेशेंट में बनता है PCR, प्रोटीन क्रेटिन PCR दूसरे वाला नहीं, प्रोटीन क्रेटिनिन रेशो, वो मैं जरा वो से बोल जाती हूँ हाँ जी। PCR, बट इट इज प्रोटीन क्रेटिनिन रेशो। वो एक हम्म। दफा तो आप जरूर जब एडमिट किया आपने, उसको लेबिटालोल दी है, तो व्हाई नॉट मैक्स सल्फेट, वो जा सकती है। 16 वीक्स पे अक्सर आपने नहीं देखा इक्लेम्शिया, हाँ जी। देखा हुआ है ना। जी। हाँ, जी। तो फिर हाँ जी। तो मैक्सल मैडम फेट वो देंगे। मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर पेशेंट 16 वीक्स पे 8 HB के साथ है
हम्म। और क्रॉनिक हाइपरटेंशन भी है। तो उसमें हम उसको ओरल पे चलाएंगे, क्योंकि उसके ऊपर वो जिस तरह हम कहते वो हैं कि मैं उनका। उस पे आती हूँ। देखिए, बात जी सिर्फ मैडम। यह है कि एग्जामिनर ने आपसे जस्टिफिकेशन देनी है। अब मैंने इनका आगे लिखा है, इन्होंने सही बोला है, पर शी डिड नॉट जस्टिफाइड इट। वो कहती कि मैडम, हम्म, एज माई पेशेंट इज जी हाइपरटेंसिव, शी इज ऑलरेडी टेकिंग so many medications, but patient is she comes under severe anemia, so I will initially build up the HB, then I will shift to the oral medications, so that's why I am giving the injectable iron. वो अगर उन्होंने इंजेक्टेबल आयरन आपने कहा है, तो आपने जस्ट, अगर एग्जामिनर का दिल है जस्टिफिकेशन पूछने का, तो वो पूछ सकता है वाई। इट 16 वीक्स के ऊपर है, तो आप जस्टिफाई करें ना कि मैडम, शी इज क्रॉनिक हाइपरटेंशन, हर ब्लड प्रेशर इज 170/110, शी इज सिम्टोमेटिक, शी कैन इनटू बी इमिनेंट एक्लेम्शिया, सो आई हैव टू बिल्ड अप द HB. I will not wait for the compliance of the patient, and might be she had some GIT problems or something, so I will assure the drug given to the patient. So IV is a surety that patient can give. और अब तो आपके पास कार्बोक्सी माल्टोज आ गया हुआ है, सो उसमें तो और बेहतर हो गया हुआ है। आप उसमें बोलेंगी, आई विल कैलकुलेट द डोज अकॉर्डिंग टू द गैंजोनीज फॉर्मूला। वो भी जब हम अनीमिया करेंगे तो उसमें आपको और बेहतर पड़ेगा। जब भी आपने साथ में अनीमिया बताना है, तो आपने कहना है कि आई विल कैलकुलेट द डोज अकॉर्डिंग टू द गैंजोनीज फॉर्मूला। हाँ, फार्मूला बताइए मत, और डोज बताइए मत। जैसे इन्होंने कहा मैं 4 डोजेज दूंगी, ठीक है, तो वो 4 डोजेज ऑफ व्हाट? आयरन सुक्रोज, आयरन कार्बोक्सी माल्टोज। अब तो दो चीजें हैं ना आपके पास आईवी में, पहले नहीं होती थी। अब आपके पास दो चीजें, आयरन सुक्रोज है जी और आयरन कार्बोक्सी माल्टोज है, मैडम, हम कार्बोक्सी। इस केस को ऐसे भी लेके चल सकते हैं कि ये एक ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसी है, पेशेंट इज इन इम्पेंडिंग एक्लेम्शिया, तो सबसे यस, पहले आप ये उसको बोलना था। हाई डिपेंडेंसी यूनिट में, ये यस, क्रिटिकल केयर यही 3 में मैं एड। आने लगी थी कि आपने इसको एडमिट तो कर लिया, लेकिन आपने हाई रिस्क भी आइडेंटिफाई कर दिया, आपने मेटरनल रिस्क एक एनॉमली बोल दिया। तो एनॉमली में आप बोल सकती थी कि माय पेशेंट, ऑल्दो शी इज शिफ्टेड, वो शिफ्ट हो गई हुई थी एल्डोमेट के ऊपर 6